our common point, we all are here just for one thing, that is English. तो हमको सबको पता है कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, दैट ऑल्सो वी शुड नो, राइट? एज इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज लाइक एनी अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. वी हैव हिंदी, मराठी, स्पेनिश, फ्रेंच, एटसेट्रा. बट इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिलता है? वाई इट इज सो दैट people around us, okay, give more importance to English? इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो मोस्ट ऑफ द, यू कैन से, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पोकन इन द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? नॉट ओनली दैट, इंग्लिश की बहुत सारी, यू कैन से दैट, यूजर्स है, या फिर इसको जनरली एक्सेप्टेड किया गया इन द सोसाइटी, राइट? हमको कई बार लगता है यार, वी आर गुड, ऑब्वियसली वी ऑल आर टैलेंटेड, वी ऑल आर somewhere down the line, we all have some of the different talent. We are born genius as per psychology. So हम सब में कुछ ना कुछ टैलेंट तो होता ही है. No one is born, you can say, dull. ठीक है, हमें क्यूरियोसिटी होती है, कोई कोई डांस में अच्छा होता है, कोई यू कैन से ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई 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 और कुछ चीज में अच्छा होता है. बट व्हाई इट इज, वी समटाइम फील दैट वी आर लैगिंग समवेयर. हमको ऐसे लगता है कि यार हमारे अंदर कुछ कमी है. इट हैपेंस बिकॉज कोई इंग्लिश में अच्छा होता है. इट्स वेरी सिंपल, सिंपल एज दैट, राइट? अब नाउ इट इज नॉट लाइक कि someone who is good in English is born with that, right? For example, if you take example of mine, ठीक है, I can speak in English for the whole day. I can speak in English throughout this session. I don't want to do that. It's a first day. But why I am able to speak English? Because I have worked on this since my childhood. Okay, I have worked on this, and not only childhood, to be very honest, even I was very shy when I passed my 10th standard, but later on I realized that this is just a language, and we can easily like learn this language, and there is a way of it, right? So हमको वही सीखना है कि लैंग्वेज पे कमांड कैसे करना है. अब लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज होती क्या है, right? Language is very simple. I'll just will start in the second part of it. So English, highest, we can say that English is the language with the highest speakers in the world. First language, you can say that first language जिसकी mother tongue होती है, तो 369 crores of people around the globe, they have the English as their first language. यानी जब वो, यानी उनके सराउंडिंग में भी इंग्लिश है, और वो लोग बॉर्न होते हैं विथ इंग्लिश. सेकेंड लैंग्वेज, यू सी, सेकेंड लैंग्वेज number is more than first language. Why it is so? Because again, as I said, that around the world we have, like, it is not like only we have a population of 369 crores. There are 8 billion people we have it on the planet as per the latest data. So you see that 868 crores, they have second language. यानी हो सकता है कि मैं एक हिंदी मीडियम या हिंदी बोलने वाले एनवायरनमेंट में, आई एम बोर्न इन दैट फैमिली, बट आई हैव लर्न इंग्लिश. तो दीज आर मोर. Now, English is one of the important language, as the most literature is available in English. One of the reason. You see, कोई भी book अगर आज आसपास आपको मिलती है, तो mostly it will be in English. English को you can say that till your 10th standard, it might not be given that importance, but as soon as you enter the college, you realize कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस कहाँ हो जाती है, बिकॉज कॉलेज में बहुत जगह पे इंग्लिश में ही लाइक द टीचर्स टीच, उसमें ही पढ़ाया जाता है. Up, you see that learning English is a must in today's world for profession and personal life. See, very important. Many of you might have come here for a motive. ठीक है, it's a common motive. सबका एक ही रीजन है कि हमको इंग्लिश सीखना है बस, right? बट इंग्लिश सीखने के पीछे का रीजन क्या है, that is very very important. ठीक है, I'll ask you the question that we have it in the slide. So पर्सनल भी हो सकता है किसी के लिए, कि भाई किसी को एक ईगो की बात आ जाती है कि नहीं, मुझे सीखना ही है. सम इंसिडेंट माइट हैव हैपेंड. और कई बार प्रोफेशनल की बात कर सकते हैं कि प्रोफेशन वाइज के हम कुछ प्रोफेशन में है जहां पे इट इज अ मस्ट, राइट? ओके, नाउ अगेन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, and please, it's a very personal question. It may be any reason. So why do you want to learn English? और इसका रीजन क्या है? मुझे हिंदी में ही चाहिए आंसर. I don't want to force anyone. So मुझे ये जानना है सबसे कि why do you want to learn English? A very very simple question, right? We'll start with the twin sisters. तो अनगा, you tell first, why do you want to learn English? English क्यों सीखना है? Sir, it will increase our knowledge of English, and also our vocabulary will be good. Okay, fine. And Ananya, what is the reason for you? Uh, Actually, it's the same reason, I think. Okay. People are very common then, in even in the interest, right?
Fine, not an Yes. issue. Okay, then yes, we have Kishori. Yes, आपको क्यों सीखना है इंग्लिश? बेसिकली हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है, इट्स फॉर प्रोफेशन. एंड ओके, सेकंड थिंग कि मेनी टाइम व्हाट हैपन, आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, बोले तो डेली मैं बहुत अच्छे से बोलना चाहती हूँ, बट क्या होता है समटाइम्स आई फॉरगेट टू बोलते विच वर्ड शुड आई यूज. करेक्ट करेक्ट. सो आई तो वांट टू इंक्रीज माय वोकेबलरी, लाइक सपोज पानी vocabulary. पूरी खाने जाना है तो आई डोंट नो वर्ड फॉर पानी Water पूरी, balls. सो मेरे को वो इम्प्रूव करना है कि हर एक वर्ड के लिए आई वांट टू नो द वर्ड, Okay, okay, इंग्लिश okay, वर्ड. okay. Fine, fine, not an issue. Yes, शिवानी, आपको क्यों सीखना है इंग्लिश? सर कभी भी फ्रेंड सर्कल में अपन जाते हैं तो सारे फ्रेंड्स इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन मैं इतना खुद होके नहीं बात कर पाती, मतलब आता है तो भी इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाती कॉन्फिडेंस उधर. नहीं आता है. ओके. हम्म. तो एक यानी कि जैसे कि मैंने बताया पर्सनल यूज है और प्रोफेशन वाइज आल्सो, राइट? यस, ओके, प्रोफेशनल. फाइन फाइन. यस अली, आपको आवाज आ रही होगी तो आप बताइए आपको इंग्लिश क्यों सीखना है? We are traveling even to like other students also, they are out, as I have already given their dates. You might have forgotten. Let us see. हेलो. हाँ अली, हाँ बोलिए, आपको इंग्लिश क्यों सीखना एक्चुअली मैं मेडिकल फील्ड में हूँ तो वहाँ पे इंग्लिश मस्ट है. और अभी जो हमारे बच्चे जो है वो भी अब एक स्कूल में जा जाते हैं तो वो आकर कुछ सवाल करते हैं कुछ है? इंग्लिश करेक्ट में, तो करेक्ट वहाँ थोड़ा सा अच्छा फील नहीं, वो फील नहीं होता है कि बच्चे अपने से कुछ इंग्लिश में सवाल कर रहे हैं, अपन को जवाब नहीं दे पा रहे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव मेंशन, राइट. सी बेसिकली जैसे मैंने बताया कि एक दोनों चीजें हो जाती है. एक तो प्रोफेशन वाइज तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है ही, पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज मेनी टाइम इट हैपेंस कि जैसे कि ली ने बताया कि आसपास वाले इंग्लिश बोलते हैं. हम चाहते हैं कि हमारे रिलेटिव, हम अगर आप इफ यू आर मैरिड यू वांट योर किड्स टू लर्न इंग्लिश. बट यही बात होती है जब वो आके हमसे बात करते हैं. यू माइट हैव सीन मेनी मूवीज आर मेड ऑन दिस. इंग्लिश मीडियम देखा होगा आप लोगों ने, इंग्लिश इंग्लिश देखा होगा, लाइक वंडरफुल मूवीज विद ग्रेट मैसेज. और उसमें ये बताया जाता है कि लाइक एट द एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट ऑल्सो, बट यू सी दैट यू शुड ट्राई एंड लर्न द थिंग्स, राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग. Now let me come to a very like common, or this is called as the learning zone. You see the great thing about this learning zone is what, that it will definitely, you will agree that these things happen. अब बात करें हम हमारे कंफर्ट जोन की. ठीक है, ये दिख रहा है रेड कलर का, जो सबको दिख रहा होगा, रेड कलर का जो जोन है इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन. यानी कि अभी हम सब कंफर्ट जोन में, अभी हमको कोई टेंशन नहीं है, हमको कोई, अभी हमको किसी चीज की टेंशन नहीं है. हम कैसे फील कर रहे हैं, हम वी आर फीलिंग सेफ एंड इन कंट्रोल, है ना. अभी हमको कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब कोई अगर कुछ बोलेगा तो वी वोंट, यू कैन से गेट हेजिटेंट अबाउट इट और नर्वस अबाउट इट. अब इसके बाद एक जोन आता है जिसको बोला जाता है फियर जोन. बहुत सारे लोग जैसे कि आप में से भी बहुत सारे लोग अभी फियर जोन में भी आ जाते होंगे इंग्लिश को लेके. अब फियर जोन में क्या क्या होता है, आई वुड लाइक टू टेल यू. फियर जोन में होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस. यानी कई बार हमको खुद पे डाउट आना चालू हो जाता है कि क्या मैं सही में कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कुछ भी बात के लिए. इट्स नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, इट्स अ जनरल लर्निंग जोन है. इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है, बट यू विल डेफिनेटली कनेक्ट टू द लाइक थिंग्स. ओके, उसके बाद आता है कि फाइंड एक्सक्यूजेस. आई एम रियली श्योर दैट यू वुड अग्री दैट जब हम फियर जोन में आ जाते हैं तो वी स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को किसी ने बोला है कि अब मुझे डांस नहीं आता है, ठीक है, अब अगर किसी ने बोला सर आप डांस करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैं कर सकता हूँ कि नहीं. फिर मैं रीजन बताऊंगा, नहीं यार अभी तो मेरा तबीयत खराब है, मुझे नहीं आता है, मेरा पैर दुख रहा है, एक्सेट्रा. ठीक है, बी अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. कई बार ऐसे होता है कि लोग हमको कुछ बोल देते हैं, दे टैग अस एंड वी फील, वी थिंक मोर अबाउट देम, नॉट अबाउट अस. है ना, किसी ने बोल दिया कि तो आप बैड डांसर हो, तो मैं ये नहीं सोचूंगा नहीं मुझे तो एंजॉय करना चाहिए, बट मैं ये दिमाग में मेरे चलता रहेगा कि समवन हैज टैग्ड मी एज बैड डांसर. उसके बाद आ जाता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन जिसको लर्निंग जोन बोलते हैं. अब लर्निंग जोन, हमको कंफर्ट जोन से निकलकर लर्निंग जोन पर आना है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. लर्निंग जोन में क्या होता है, लर्निंग जोन में डील विद चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स.
पहली बात तो हमको पता होता है कि कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब जैसे मुझे अगर डांस नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा, एक्वायर न्यू स्किल्स। मैं सीखूंगा डांस के बारे में, डांस कैसे होता है, वेरी बेसिक स्टेप्स कैसे करना है, डांस होता क्या एग्जैक्टली, डांस इज अ मूवमेंट, हैंड्स और बॉडी और लेग्स एंड एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंड योर कंफर्ट जोन, यानी हमें डरना नहीं, हमारा कंफर्ट जोन हमको खुद ही सेट करना है कि नहीं आई एम कंफर्टेबल। ठीक है, मैं जितना भी कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, कंफर्टेबल हूँ। उसके बाद हमारा, जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे गाड़ी गियर चेंज करती है वैसे हमको गियर चेंज करना है, एंड यू विल सी दैट फाइंड पर्पस। ठीक है, देन आपको लगेगा कि नहीं यार, अब मुझे इसका एक रीजन मिल गया है करने का, एंड लिव ड्रीम्स। ठीक है, अगर मुझे कोई चीज पसंद है और मैं करना चाहता हूँ तो देन डेफिनेटली आई ड्रीम बिग अबाउट इट, कि नहीं मैं यहाँ से 1 साल बाद आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश with my friends, family members, anywhere, and I will give interviews in English. I will not hesitate. मुझे जितना आता है मैं उसके बारे में बात करूंगा। Set goals, ठीक है? When you are in growth zone, so it's not only about English, as I said, it may happen that you are at workplace, तो workplace में आप एक नए नए गोल सेट करोगे, और उसके बाद conquer objective, जो आपने सेट किया है उसको आप conquer करने के लिए वर्क ऑन करोगे। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड, एज आई सेड, द लर्निंग जोन। तो लर्निंग जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी लाइफ में, क्योंकि हमको भी सीखना चाहिए नए नए स्किल्स। यू वोंट बिलीव, आई विल शो यू द वीडियो ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट। आई वेंट टू हिज हाउस एज अ होम ट्यूटर एंड आई यूज्ड टू टीच हिम इंग्लिश। मैंने उसको इंग्लिश पढ़ाया, उसका बहुत अच्छा चेंज हुआ है। नाउ यू वोंट बिलीव कि नाउ हिज पेरेंट्स वांट मी टू टीच हिम फ्रेंच, जबकि मैंने बोला है मुझे फ्रेंच नहीं आती है, मैं बिल्कुल फ्रेंच मेरे लिए नई बात है, लैंग्वेज ट्रेनर मैं इंग्लिश के लिए हूँ। बट दे सेड नो सर, वी बिलीव दैट यू कैन टीच फ्रेंच, आप सीखिए और सिखाइए। उस चीज के लिए दे हैव हायर्ड, एंड आई हैव द वीडियोस, आई विल शो यू। इंट्रोडक्शन याद हो गया है, और फ्रेंच भी एक लैंग्वेज ऐसी लग रही है कि अरे हाँ ये भी बहुत ईजी है। तो इफ यू ट्राई टू थिंक, हर चीज ईजी लग सकता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट। Now, obviously, most of you would agree these are the importance of English, as I said. Jobs के लिए होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन और इंग्लिश दोनों अलग अलग चीजें है, फॉर वन मोमेंट डोंट कंफ्यूज। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं हो जाता इंग्लिश आनी ही चाहिए। कम्युनिकेशन इज अ स्किल ऑफ, यू कैन से, व्हेन अ सेंडर ट्रांसफर द मैसेज टू द रिसीवर। अगर मुझे आपको कोई एक बात बोलनी है, अगर मैं उसको एक कोई भी लैंग्वेज में, communication, it's not important even to talk. You might have seen that in China, अगर हम जापान जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, दे आर लाइक दे आर रेडी इन देयर ओन लैंग्वेज, बट अगर वहां पे साइन लैंग्वेज यूज करोगे तो वो समझ जाएंगे। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट टी, तो आप ऐसे करो, वो समझ जाएंगे। गलत करना है, नहीं बोलना है, तो आप ऐसे बोलो। दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, दिस इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में भी स्पीक, नॉन वर्बल में वी डोंट स्पीक, वी शो सम एक्शन, जेस्चर, पोस्चर्स। तो बहुत चीजें है, एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डेफिनेटली वी ऑल वांट दैट आवर इंप्रेशन शुड बी गुड। अगर हम 100 पीपल देयर आर सिटिंग एंड वी जस्ट वॉक इन देयर, पीपल शुड सी अस, पीपल शुड अप्रिशिएट अस, पीपल शुड फील दैट हाँ, this is a person who has a great personality, right? Everyone wants to grab the attention, but problem ये होता है कि हम एक अच्छा अटेंशन ले सकते हैं या बुरा अटेंशन ले सकते हैं। We can also grab bad attention if we, as I said, that if it is an embarrassing moment, your attention is bad in front of others. Okay, now what are the different you can say problems people face in learning English? तो ऑलरेडी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स वी हैव शेयर्ड, बट कुछ और हो सकता है, या फिर हम किसी से हमने पूछा नहीं है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आप लोगों को सामने। यू कैन डिस्कस दैट वेरी ओपनली, एज वी ऑल हैव, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। हम सब जो है एक ही नाव के अंदर सवार है, तो यू शुड बी कंफर्टेबल फर्स्ट थिंग इन द क्लास। तो अनगा, यू कैन स्टार्ट। बताओ क्या प्रॉब्लम्स आती है लाइक व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अनगा, अनन्या, हेलो। Yes, sir. हाँ, Sir, when we learn English, we catch a fear that we will not speak it well, or we are having some spelling mistakes or vocabulary. Our vocabulary is वर्ड से very रिलेटेड। bad. ओके, Yes, okay, we very don't we bad. lack. Mm-hmm. Yes, sir. Fine, fine, fine. And you like both of you are having mostly same issue. Actually,
we also have lack of confidence while speaking English. ठीक है, ठीक है, ठीक है. कॉन्फिडेंस आता है विद प्रिपरेशन, आई टेल यू. और एवरी टाइम इफ यू सी एनीथिंग व्हिच कम्स इन योर माइंड, कॉन्फिडेंस जब भी आता है व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड. फॉर एन एग्जांपल, इफ यू हैव एग्जाम, जस्ट एन एग्जांपल, इफ यू हैव एग्जाम एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, तो एग्जाम में यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. एम आई राइट? बट अगर इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, यू विल बी कॉन्फिडेंट लाइक एनीथिंग. तो प्रिपरेशन और Yes, sir. कॉन्फिडेंस इज लाइक हैंड इन हैंड. ठीक है, चलो वो तो हो गई बात, हम देखेंगे आगे के इश्यूज जो भी है. Yes, Shivani, you can tell like what are the different problems you face. आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? सर वर्ड्स याद नहीं आते, मतलब हिंदी में वर्ड्स याद नहीं. इजीली बोल देते बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं कभी कभी उधर ही होता है. और वोकैबुलरी, मतलब कॉन्फिडेंट. उसका एक सिंपल सा यस पार्ट वी कैन से वोकैबुलरी बोलते हैं उसको. यस वर्ड्स याद नहीं आना ये प्रॉब्लम होता है. सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है? होती है, सेंटेंस बनाने होती भी है. होती है. अच्छा, तो वो तो कॉमन सीधी बात है, वर्ड्स नहीं आते तो सेंटेंस नहीं बनते, एज लैंग्वेज इज बिल्ड इन दैट वे. ओके, यस किशोरी, आपका क्या प्रॉब्लम होता है? lack of vocabulary and वोकैबुलरी होती है. exact time पे exact word याद नहीं आता. एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आता. ओके, दैट इज अगेन लाइक वोकैबुलरी, बट वी कॉल इट लाइक पर्टिकुलर चीजों की वोकैबुलरी होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं उसको बोलते हैं हम हॉस्पिटल की वोकैबुलरी. इज इट क्लियर? वहीं पे अगर आप जाओगे कहीं पे, फॉर एग्जांपल यू डील विद लाइक फॉर एग्जांपल कोर्ट, क्रिमिनल और पुलिस, तो उनकी वोकैबुलरी बहुत अलग हो जाती है. फॉर एग्जांपल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब हमको लगेगा यार ये क्या है, राइट? बट जो उस फील्ड में उनके लिए बहुत आसान है. एम आई राइट? बात कहाँ पे अटक जाती है कि ये वर्ड हमने पहली बार सुना है, बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते. इसका भी वेज है, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल, नॉट एन इशू. ठीक है. एंड And एंड sir, हु हैज one ज्वाइंड more. विद. हाँ, यस यस, टेल. I'm not that much friendly with English language. बोलो तो lack of environment बोलो या फिर हाँ, एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इतना नहीं होता है. वो एनवायरनमेंट कैसे हो जाता है कि वी कैन से दैट लाइक वी हैव मेड अ माइंडसेट. ठीक है, ये एक सब मेंटालिटी है कि अगर एनवायरनमेंट मिलेगा तो इंग्लिश आ सकती है, नहीं आ सकती है. ये होता है बट नॉट अप टू द एक्सटेंट. ठीक है, अगर आप को अभी जैसे क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय मदर लाइक शी इज फ्रॉम उर्दू मीडियम एंड शी डजंट स्पीक, स्टिल शी डजंट स्पीक. My father, he is from English medium, he is in police service, but उन्होंने भी छोड़ दिया है, वो मराठी बोलते हैं. अब मेरे पास भी एनवायरनमेंट था नहीं टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा, बट क्या होता है कि यू हैव टू मेक अप योर माइंड और कुछ चीजें हो जाती है जिसको वी कैन कैरी फॉरवर्ड. फाइन, नॉट एन इशू. उसके बाद लाइक ईश्वरी तो वरद, आई एम वेल अवेयर ऑफ बोथ ऑफ देम. ठीक है, सो लाइक नाउ दे आर एबल टू स्पीक प्रिटी मच वेल. ठीक है, बट दे हैव जॉइंड for understanding or you can say brushing up. Okay, now let us start with very basic. ठीक है, मैं एकदम बेसिक से बात करता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा. अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की. What is a language? According to you, according to us, language is nothing but you can say that जो हम बोल रहे हैं वो एक हमारी लैंग्वेज है. अब now any language, I'm not talking only about English, any language if you take, तो लैंग्वेज बनती कैसी है? लैंग्वेजेस बनती है with the very you can say basic thing that is alphabet. हर लैंग्वेज में अल्फाबेट होते हैं कहीं पे, जैसे कि हमारे हिंदी मराठी में वर्णमाला होती है. वैसे अगर इफ आई टॉक अबाउट फ्रेंच, जैसे मैं बता रहा था, उनके अल्फाबेट बहुत से सिमिलर है, बहुत सारे अलग है. ठीक है, तो ये चीजें बहुत डिफरेंट डिफरेंट है हर जगह पे. अब अल्फाबेट तो सबको आते हैं, आई गेस ABCD सबको आती है. अब अल्फाबेट से ही बनता है साउंड, जब साउंड सब मिलकर बनता है वर्ड. अब जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ, CAT बन गया कैट, BOY बन गया बॉय, ये सबको पता है. अब वर्ड्स कम टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंस. अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, HE ही, IS इज, TEACHER टीचर. तो यहाँ पे सेंटेंस बन गया ही इज अ टीचर. सबको पता है इसका मीनिंग क्या है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस, ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है. ठीक है, अब जब प्रॉपर वर्ड ऑर्डर मिलेगा तभी हम बोलेंगे ना कि ये सेंटेंस सही है. जैसे कि अगर मैं ये दोनों सेंटेंस वर्ड में वही ले रहा हूँ, बट मैंने पहला वाला लिखा है ही इज अ टीचर, सेकेंड वाले में लिखा है ही टीचर इज, अपने को समझना ही है कि भाई यहाँ पे कौन सा वाला सही है, विच वन इज करेक्ट. सो ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज करेक्ट बिकॉज इट इज इन द प्रॉपर ऑर्डर. ठीक है, अब वो ऑर्डर क्या होता है वो सब भी हम देखेंगे. अब बेसिक डिफरेंस आई विल टेल यू, मेनी ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, व्हाट वी फेस.
that we are born in India, तो मोस्टली वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल लैंग्वेजेस, और बोल सकते हैं हिंदी, मराठी एटसेट्रा। अगर बात करें हिंदी की फॉर एग्जांपल, तो हिंदी में हिंदी का ग्रामर और हिंदी कैसी होती है और इंग्लिश कैसी होती है, जस्ट एन एग्जांपल हियर। अब देखो हिंदी में ये हो जाता है राजा क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो इसका मीनिंग सबको पता है कि राजा क्रिकेट खेल रहा है, यानी एक पर्सन है राजा और वो क्रिकेट खेल रहा है। अब इसी सेंटेंस को मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो ये ऐसा जाएगा, राजा इज प्लेइंग क्रिकेट, एंड विद द कलर्स यू माइट हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड इफ इन केस लाइक क्लास गेट्स एंड, तो प्लीज रीजॉइन इट, टुडे इज आवर फर्स्ट डे, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, कल से फिर टाइम पे सब एंड हो जाएगा, ठीक है। सो 1 minute इज रिमेनिंग, इफ इट एंड्स प्लीज ज्वाइन इट अगेन। सो यहाँ पे मैं जैसे बात कर रहा हूँ, राजा क्रिकेट खेल रहा है, तो राजा के बाद आ रहा है क्रिकेट, यानी राजा जो है जो एक्शन कर रहा है उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जा रहा है क्रिकेट, और बाद में वर्ब आ रहा है लास्ट में। बट इंग्लिश में ऐसे नहीं होता है, इंग्लिश में जो कर रहा है एक्शन वो पहले आता है, फिर वर्ब आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये सबसे बड़ा, ये एक बहुत बड़ा इशू यही हो जाता है जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। बट इंग्लिश में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू लर्न, योर ब्रेन मेक सेंटेंसेस इन दिस वे, ठीक है, कि यहाँ पे राजा इज प्लेइंग क्रिकेट खुद ब खुद आपके माइंड से बनेगा। अभी क्या हो जाता है, हमको ऐसी आदत हो जाती है, राजा क्रिकेट खेल रहा है, फिर उसको हम बोलते हैं अच्छा राजा खेल रहा है प्लेइंग क्रिकेट, राजा प्लेइंग क्रिकेट, बट हम भूल जाते हैं कि वर्ब हमने सही लिया है क्या नहीं, स्ट्रक्चर सही है क्या नहीं, हम क्या बोल रहे हैं वो सही है क्या नहीं, राइट। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट